counties on the state's monitoring list. And in Mexico, COVID-19 testing is being done in large scale in the Mexico City's barrios that are under red alert for COVID-19 infections. The scheme has been rolled out in 32 suburbs in the capital that has slipped back into red alert, with the families turning out to get themselves tested. Mexico's death toll from the pandemic has crossed 40,000 mark. Total cases are at more than 3.56 lakh, putting the country within the world's top 10 for the number of infections. The U.S. Secretary of State Mike Pompeo has said that Communist Party of China has been exploiting the COVID pandemic to further its interests globally. After meeting with the UK Foreign Minister Dominic Raab, he said that the US stands with the UK in the fight against COVID. The US Secretary of State used his visit to London to outline a vision for a global coalition to counter the communist regime. He also mentioned the aggressive and expansionist policy of the Chinese regime from South China Sea to India. We talked about how we've seen Hong Kong's freedoms crushed. We've watched the CCP bully its neighbors, militarized features in the South China Sea, and instigate a deadly confrontation with India. I want to take this opportunity to congratulate the British government for its principled responses to these challenges. The US Secretary of State also called the world to work together to ensure that every country, including China, behaves in the international system in ways that are appropriate, consistent with the international order. Casting China as an aggressor, Pompeo said that it had made illegal maritime claims and bullied the Himalayan countries, also covered up the COVID-19 outbreak and exploited it to further its own interests in a disgraceful way. Go make claims for maritime regions that you have no lawful claim to. You can't threaten countries and bully them in the Himalayas. You can't engage in cover-ups and co-opt international institutions like the World Health Organization. We want to see every nation who understands freedom and democracy and values that and knows that it's important to their own people, their own sovereign country, to be successful, to understand this threat that the Chinese Communist Party is posing to them, and to work both themselves and collectively to restore what is rightfully ours. In more news from around the world, all the 13 people taken hostage on a bus in western Ukraine were freed unharmed on Tuesday after the President Zelensky spoke on phone with the hostage taker and agreed to his demand to endorse a 2005 animal rights documentary. The suspect, identified as 44-year-old Maxim Krivosh, who seized the bus in the city of Lutsk, saying he was armed with guns and explosives. Interior Minister said that he had served time in prison, and the SBU said he had propagated extremist views. Police said that the hostage taker had threatened to blow up the bus and detonate another explosive in a crowded area in the city. Police had then blocked off the city center with armed officers, cars and an armored personnel carrier while they tried to persuade the hostage taker to free the hostages in a day-long standoff. In the post on social media, he had also demanded that senior Ukrainian officials publish statements saying that they were terrorists. And with that, it's a wrap on this edition of the news. Thanks for being with us. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। Munni, where are you?
They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित। सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ ही महामारी के बाद वाली दुनिया में दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर भी होगा विचार। राज्यसभा के नए सदस्य आज लेंगे शपथ। पहली बार संसद सत्र न होने के बावजूद होगा शपथ ग्रहण। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। सीरोलॉजी सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 23% से अधिक जनसंख्या में बनी एंटीबॉडी। 77% आबादी को सावधान रहने की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से कम। देश में अब तक 7,24,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक टेस्ट। देश में मृत्यु दर घटकर अब 2.43%। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। असम में बाढ़ की स्थिति बरकरार। 10 जिलों में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर। वहीं बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भारी बारिश, निचले इलाकों में जल जमाव से यातायात हुआ प्रभावित। और दुनिया भर में देशों की कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो जारी। विश्व में 1,50,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 6,18,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है कोरोना महामारी का विश्व स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल। दक्षिण चीन सागर से भारत तक चीनी शासन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति की भी आलोचना की। साथ ही कहा हर देश करे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया आइडियाज समिट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण देंगे। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक शामिल होंगे। सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली संबोधित करेंगे। जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्चुअल सम्मेलन कोरोना संकट के समय हो रहा है, लिहाजा इस वर्ष की थीम भी मौके को ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। सम्मेलन में ग्लोबल सप्लाई चेन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी और बढ़ाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। खासतौर से इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि महामारी को लेकर पूरी दुनिया में प्रभावी नेतृत्व दिया है। इस वर्चुअल समिट यानी आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबार जगत और समाज के प्रमुख विचारकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति होगी। शिखर सम्मेलन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वर्जीनिया के सेनेटर और सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली जैसी शख्सियतें शामिल रहेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी जगत के दिग्गज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
सुधाकर दास की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, दिल्ली। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका को व्यापार को और बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। Need to work towards a much more sustainable, a much more robust, a much more enduring partnership in the form of a free trade agreement to which India is willing to work with an open mind, with a willingness to open our hearts and our markets with a corresponding opportunity for Indian businesses in the US. We believe we should also look at an early harvest in the form of a preferential trade agreement so that we can, rather than waiting for the gains of a free trade agreement, which may take several years to conclude, we could look at an early harvest of maybe 50, maybe 100 products and services where we can engage with mutual trust and an open spirit. और अब खबर राज्यसभा से जुड़ी हुई। राज्यसभा के नए सदस्यों को आज शपथ दिलाई जाएगी। पिछले महीने 20 राज्यों से कुल 61 सीट पर चुनाव संपन्न हुआ था। इन नए सदस्यों को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। ये पहली बार है कि संसद का सत्र न होने के बावजूद राज्यसभा सदन में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। राज्यसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से कुल 67 सदस्यों की बैठने की जो जगह है वो सुनिश्चित की गई है। शपथ देने वाले एक सदस्य के साथ परिवार का या कोई एक अन्य व्यक्ति साथ जा सकता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ये फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया कि संसद के दोनों सदनों की जो संसदीय समितियां हैं उनकी बैठक होना शुरू हो चुकी है और इन नए सदस्यों ने इसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर की। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन समेत द्रमुक के तिरुचि शिवा और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश ने भी बुधवार को ही शपथ लेने की खबरें सामने आई हैं। जो सदस्य बुधवार को शपथ नहीं ले पाएंगे वो आगामी सत्र में शपथ लेंगे। कुल 61 में से 43 सदस्य जो हैं वो पहली बार सदन में पहुंचे हैं। इनमें 12 सदस्य ऐसे हैं जो कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर निर्वाचित हुए हैं। पिछले महीने 19 तारीख को हुए 20 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। इसके बाद सदन में भाजपा की सीटों की संख्या 75 से बढ़कर अब 86 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं सीरो सर्विलेंस की। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सीरो सर्जिकल सर्वे से साबित हुआ कि दिल्ली की सिर्फ 23% जो आबादी है वो कोरोना से संक्रमित हुई है। क्या है ये सर्वे, क्या है इसके मायने, क्या है इसके परिणाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार के साथ। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और हर वो वैज्ञानिक तरीका अपना रही है जिससे समस्या को समझने और उसको दूर करने में मदद मिलती है। बीते दिनों दिल्ली में कोरोना के मामले के सामने आने की रफ्तार में काफी तेजी देखी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए। इसी कड़ी में दिल्ली में बीते दिनों सीरोलॉजी टेस्ट कराया गया, जिसके तहत पता चला है कि दिल्ली की करीब 1/4 आबादी ही कोरोना से संक्रमित हुई है। सीरोलॉजी टेस्ट के मुताबिक दिल्ली में 23.48% लोगों में कोरोना से जंग करने वाली एंटीबॉडी बन चुकी है और इन लोगों में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए उनमें कोई लक्षण नहीं आए और वो ठीक भी हो गए। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज़्यादा आया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शहादरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफ़ी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है।
दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले इलाके में महज 23% लोगों का संक्रमित पाया जाना ये बताता है कि सरकार ने लॉकडाउन से लेकर जो अन्य बड़े फैसले किए उनका भी असर है कि सिर्फ 23% लोग अभी तक इस समस्या की चपेट में आए हैं। हालांकि अभी भी लोगों को इस समस्या से बचे रहने के लिए हर एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। दिल्ली में सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच सभी 11 जिलों में किया गया। इनके तहत लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया और फिर उनके सीरा को IgG एंटीबॉडी और संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें ICMR द्वारा अनुमोदित कोविड कवच एलिसा का उपयोग किया गया। इस सर्वे के लिए 21,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। सर्वे की शुरुआत कंटेनमेंट जोन से हुई। दिल्ली में हुए सीरोलॉजी टेस्ट में उन लोगों को ही शामिल किया गया जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, जिन्हें पहले कोरोना नहीं हुआ था। इनमें अलग अलग उम्र व इलाके के लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी NCDC ने भी अहम भूमिका निभाई। गौरतलब है कि सीरो सर्वे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ट्रेंड का पता लगाने में मदद करता है। सीरो सर्वे यह समझने में भी मदद करता है कि देश की आबादी का कितना हिस्सा कोविड-19 के संक्रमण के दायरे में आ गया है। सर्वे के नतीजे के हिसाब से ही रोग के संक्रमण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलती है। महामारी के लगभग 6 महीने में दिल्ली में केवल 23.48% लोग ही कोविड बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जो बताता है कि संक्रमण रोकने के कदम काफी हद तक प्रभावी रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करना, रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना, उनका टेस्ट करना, निगरानी करने जैसे कदमों से इस फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है। संक्रमण को रोकने में जनता के व्यवहार में आए बदलाव को भी काफी मददगार माना जा रहा है। नितेंद्र सिंह के साथ DD न्यूज। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने बताया कि देश में प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 180 टेस्टिंग्स हो रही हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर पॉजिटिविटी रेट को पहले चरण में 10% और आगे 5% से कम रखने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है, इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम। वहीं नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बताया कि एम्स के सहयोग से देश के सभी डॉक्टर्स के बीच कोरोना इलाज संबंधी नई जानकारियां और निर्देशों को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है। इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे, और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। और अब बात कोविड-19 की। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,24,577 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के जो मरीज हैं उनके ठीक होने की जो दर है वो 62.72% है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख से ऊपर हो गई। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 28,084 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है।
और अब बात बाढ़ की और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियों का जो जलस्तर है वो फिर से बढ़ने लगा। मौसम विभाग ने 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 16 लोगों की जान चली गई। इनमें से 7 लोगों की मौत बांका में, 3 की नालंदा में और 1 की पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और नवादा में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। गंडक बैराज में पानी का डिस्चार्ज लगभग अपने चरम पर पहुंच गया है। बीती रात डिस्चार्ज लगभग 4,30,000 क्यूसेक था। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। 9 जिलों में लगभग 3 लाख की आबादी अब तक प्रभावित हुई है। और इसी पूरे मामले पर बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सलमान, हम जानते हैं कि बाढ़ के कारण जो अभी बिहार की स्थिति है वो अपरिवर्तित है, यथास्थिति वहां पर बनी हुई है, जहां 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और नया अलर्ट जारी किया है। वहीं गंडक जो नदी है उसने भी परेशानी का सबब बढ़ा दिया। जी आंचल, ये पिछले 2-3 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि अब आगे आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ऐसा जल संसाधन मंत्रालय विभाग ने, जो बिहार का जल संसाधन विभाग है, उसने कहा है कि जो भीषण बाढ़ थी उसके बराबर ना हो जाए। खासतौर से चिंता इस बात की है कि जो नेपाल में जो जलग्रहण क्षेत्र हैं नारायणी नदी के, जिसकी वजह से गंडक बैराज से पानी का फ्लो बढ़ गया है, डिस्चार्ज बढ़ गया है, उसमें और ज्यादा बारिश हुई है कैचमेंट एरिया में नेपाल में। और जो भैंसा लोटन पुल है नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, जो दोनों देशों के सहयोग से बना है, वहां पे वाटर लेवल काफी हाई हो गया है। तो इस तरह से हम देखें, जो बेतिया का इलाका है, जो मोतिहारी है, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर, सुपौल, गोपालगंज और सारण, इन जिलों में ये जो प्रवाह क्षेत्र है खासतौर से गंडक का, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है, ऐसा जल संसाधन विभाग ने कहा है। और परसों से ही माइकिंग की जा रही है प्रभावित क्षेत्रों में। नावों के जरिए लाउडस्पीकर पर लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है और लोग जाने भी लगे हैं, तटबंधों पर शरण ले रहे हैं, दूसरे ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। जी आंचल जी, और साथ ही सलमान, हम जानते हैं कि ये दोहरी मार है। एक तरफ हम बाढ़ से निपट रहे हैं, कोरोना का भी काल है, और साथ ही साथ वज्रपात की स्थिति से भी बिहार को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो पूरी स्थिति है वो किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए, चुनौती है दोहरी, जैसा कि आपने कहा, तिहरी चुनौती है। बिहार में वज्रपात से मरने वालों की संख्या इस समय 130 से ऊपर बढ़ गई है, 135 के आसपास है, और प्रशासन ने सहायता तो दी है, लेकिन साथ ही साथ ये तो दैवीय आपदाएं हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लें, कोविड-19, बाढ़ और जो बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं, तो एनडीआरएफ इसमें चेतावनी जारी कर रहा है, साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहा है। जो मास मीडिया है, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि वो ठहरे हुए पानी में, या जो पानी बहाव वाला पानी है, घुटने भर पानी है, उसके अंदर न खड़े रहें, खासतौर से उस समय जब वर्षा हो रही हो, तो और पेड़ों के नीचे ना रहें। इस तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो आत्मरक्षा के उपाय हैं वो भी एनडीआरएफ बता रहा है उन्हें। तो ये सारी अवस्थाएं हैं। कोविड-19 में ताजा अपडेट भी है कि अब अनुमंडल स्तर पर, जो सब डिवीजन लेवल पर टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, और बहुत सारे सामान्य अस्पतालों में भी एक ब्लॉक अलग कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अहम आपने सलमान बताया कि किस तरह से जो ये
स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसको निपटने के लिए प्रशासनिक तौर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी बुलेटिन्स में अपडेट लेते रहेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ पिछले 3 दिन में हुई बारिश से बाढ़ के हालात में कुछ बदलाव नहीं आया। कल 2 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद राज्य में बाढ़ जनित घटनाओं में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इस साल 26 लोग भूस्खलन के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य के 24 जिलों में 24 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। 2300 से अधिक गांव और 1,10,000 हेक्टेयर से अधिक फसल की जो भूमि है वो जलमग्न हो गई। प्रदेश भर में 276 राहत शिविरों में लगभग 44,500 लोगों ने शरण ले रखी है। कम से कम 10 जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी अधिकांश सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण राज्य में सैकड़ों की तादाद में तटबंध, पुल, पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इसी बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ गुवाहाटी से बात कर लेते हैं अपने संवाददाता कमल बोहरा से। कमल, हम जानते हैं कि असम जो है वो नदी घाटी पर बना हुआ राज्य है और ऐसे में लगातार हम ये भी मानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो कवर एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं परेशानी और चुनौती है, खास तौर पर इस वक्त जब असम बाढ़ से जूझ रहा है। जी बिल्कुल आंचल, आपने सही फरमाया। जो ये यहाँ के जो नदियां है, खास करके ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ के लाइफलाइन माने जाते हैं, तो हर साल ये बाढ़ का ये सोर्स होते हैं, क्योंकि नदी जो है अरुणाचल होके असम होके फिर बांग्लादेश की ओर जाते हैं और अरुणाचल में भी जब काफी बारिश होते हैं तो इसका प्रभाव असम में भी दिखने को मिल रहा है, क्योंकि असम लो लाइंग एरिया में आते हैं। तो जो ये लोअर स्ट्रीम एरिया जो है वहाँ पे काफी प्रभाव यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त की बात तो हम लोग ने पिछले 24 घंटों में हालांकि कोई सुधार नहीं दिख रहा है, लेकिन आज के दिन में यहाँ पे स्थिति गंभीर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जल स्तर में जो गिरावट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में दिखने को मिल रहा था, ये फिलहाल फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक चिंता की विषय यहाँ पे फिलहाल बना हुआ है। ऊपर से जो ये लगातार यहाँ पे मौतें हो रही है, कल भी यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कुल मिला के जो फ्लड में अब तक 87 लोगों की फिलहाल मौत हो चुका है। तो इसमें अभी कोई कमी नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा चिंता के विषय बना हुआ है। ऊपर से 24 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पे फिलहाल बाढ़ पीड़ित है और स्थिति और भी गंभीर जब हो जाएगा, ये आंकड़ा फिर से बढ़ने का संभावना है। तो यहाँ पे स्थिति काफी गंभीर है आंचल इस वक्त। जी बिल्कुल, स्थिति गंभीर है। उम्मीद करते हैं कि आगे स्थितियां हैं जो वो सामान्य होंगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए कमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जानते हैं कि असम एक पहाड़ी इलाका है जहां पर जब भी असम में बारिश होती है, खास तौर पर जो ब्रह्मपुत्रा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी वजह से चुनौती और परेशानी बढ़ जाती है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडिया समिट में कहा कि भारत मजबूत हो, इसके लिए जो MSME है उसको मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत बैंकिंग क्षेत्र के साथ MSME का समर्थन करना चाहती है, लिहाजा भारत आयात के लिए दरवाजे बंद नहीं करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दैनिक आधार पर MSME के लिए जो ऋण प्रवाह है उसकी निगरानी कर रहा है और अब तक करीबन 1,80,00,000 से ज्यादा का जो ऋण है वो मंजूर किया जा चुका है। We want India to be strong. We want India to be speaking from position of strength, particularly from the economic point of view. Our MSMEs contribute to over 40% of our exports. We want them to be strong. We want them to be supported by a banking system which is strong. राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया। जावड़ेकर ने राहुल को करारा जवाब देकर बड़ा निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर कोरोना योद्धाओं और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शाहीन बाग से लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सियासी संकट पर राहुल गांधी को घेर लिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे और इसलिए हताश निराश सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है।
वो सफल नहीं होंगे। दुनिया भर में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस से विश्व भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,50,91,000 के पार हो गई, जबकि इस महामारी से करीब 6,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कोरोना महामारी से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 40,28,000 के पार हो चुकी है, जबकि इससे 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 महामारी से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कोरोना वायरस महामारी का विश्व स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रैब के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ब्रिटेन के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ बनाने की दिशा में एक रूपरेखा बनाने के लिए अपने लंदन दौरे का उपयोग किया। अपने इस दौरे में उन्होंने दक्षिण चीन सागर से भारत तक चीनी शासन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति की भी आलोचना की है। We talked about how we've seen Hong Kong's freedoms crushed. We've watched the CCP bully its neighbors, militarized features in the South China Sea, and instigate a deadly confrontation with India. I want to take this opportunity to congratulate the British government for its principled responses to these challenges. और आज मशहूर पार्श्व गायक मुकेश की जयंती है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 1950 और उसके बाद के 3 दशक में यदि सबसे लोकप्रिय रहे पुरुष गायकों का नाम आए तो उसमें मुकेश का नाम आना लाजमी है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ था। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। राज कपूर की आवाज़ कहे जाने वाले मुकेश आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। आप इनके गीतों का आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है
डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं